Okay, thanks everyone for joining in. In our previous session, we have discussed the various candlesticks like hammer, hanging man, harami cross, and inverted hammer. Now, let us start with some more candlestick understanding. The first one, which I would like to discuss today, is a long day. We have already discussed this in one of our previous sessions when we were talking about short candles and long candles. So long day is just the name for a day when the price movement is very huge. When there is a large price movement from open to close, then it is called as long day. That's it. It does not mean anything in the sense that long day just shows that there is a huge movement on whatever side the candle is. So if it is a green candle or a white candle or a blue candle, all these three candles are used simultaneously. So if this is a green, white, or blue candle, that shows that the market is moving up and there is a huge movement in that particular day's movement of that particular stock. And if it is a black candle, red candle, I think there is someone else also who has just joined in. Thank you, Mr. Vivek. Thanks for joining in. Uh, Thank you, sir. let's continue further. Um, the next one which I wanted to share today was long-legged doji. Now, doji is something which we have already discussed earlier, right? Now, doji is given a lot of importance in stock market and especially in technical analysis because it shows that there is going to be a probable reversal in the continuing trend which is happening there. So, long-legged doji is a doji whereby the candlestick has long upper and long lower shadows with the doji in the middle of the day's trading range, clearly reflecting the indecision of traders. Now, this doji is called long leg doji when the doji is at the middle of the candle, and the upper shadow and longer shadows are very long. Okay, upper shadow and lower shadows are very long, and the doji is forming at the middle of the doji. The opposite can be that doji can be on the top side as well and the lower side as well. And we have already discussed specific type of dojis like gravestone doji or a butterfly doji. Dragonfly doji. So that we have already discussed in our previous sessions. Just wanted to bring clarity that the doji, if it is formed at the middle of the candle and the candle itself has got longer shadows on both the sides, upper and lower shadows, then it is called as long-legged doji. Again, this shows a greater reflection that there was no major decision made on that particular day. The stock markets, the price of the stock could not move either on the negative side or on the positive side in a decisive manner. As a result, it shows indecision in the market on that particular day. अब हम आगे चलते हैं. लॉन्ग शेडोज समथिंग सिमिलर है जो हम पहले अगेन फिर से डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं इस सारे कंसेप्ट्स आपको इसलिए रिवाइज करता जा रहा हूं और शेयर करता जा रहा हूं सो दैट by the end of this technical analysis session we are able to take immediate decisions by seeing the chart itself. इस चार्ट को देख के क्या लगता है, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कि इनडिसीजन है मार्केट में, हमें रुकना चाहिए वगैरह. तो आई वांट यू टू नो ऑल दिस, इसलिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं. So long shadow candlesticks which has got a longer upper shadow and a shorter lower shadow indicate that buyers dominated during the session and bid price is higher. उसका opposite क्या हो जाएगा? That candlesticks with longer lower shadows and shorter upper shadows indicate that sellers dominated during the session and drove prices lower. ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. इस दो कैंडल है आपके सामने हैं, एक ब्लैक कैंडल है, एक व्हाइट कैंडल है. लॉन्ग शेडो वाली ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसमें देखिए मार्केट प्राइस बहुत ऊपर गया था लेकिन बाद में क्लोज होते होते तक नीचे ही आ गया. ठीक है, तो बायर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश की थी ड्यूरिंग द डे, बट एट द एंड डोमिनेट नहीं कर पाए. सिमिलरली दूसरी वाली शेडो पे देखें अपन, इट शोज कि मार्केट खुला था कहीं ऊपर, ड्यूरिंग द डे नीचे गया था, मतलब सेलर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश की थी, बियर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश की थी मार्केट में, बट फाइनली मार्केट ऊपर क्लोज हुआ.
That is just the implication of this called, this is long shadow and shorter shadow. लॉन्ग अपर शेडो ये शो करती है कि बायर्स ने डोमिनेट किया था ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, लेकिन फाइनली इट डज नॉट मीन कि बायर्स जीत गए, बिकॉज फाइनली लॉन्ग अपर शेडो ये भी शो कर रही है कि बायर्स वर नॉट एबल टू होल्ड द प्राइसेस अप. अगर वो ऊपर प्राइस होल्ड कर चुके होते तो ये देखिए, ये वाली जो कैंडल अभी आप देख रहे हैं ब्लैक कैंडल, अगर ये प्राइस ऊपर होल्ड कर चुके होते तो ये अपने आप में एक नॉर्मल कैंडल हो जाती, राइट. इट वुड नॉट हैव बीन अ शैडो कैंडल जिसमें शैडोज बड़ी हों. ऐसा केस नहीं होता इस केस में. तो दैट्स द डिफरेंस. देन नेक्स्ट कम्स इज मारुबुजो. मारुबुजो कैंडल जापानीज कैंडल है. जापानीज एनालिस्ट ने निकाला था इस कैंडल का एनालिसिस, या ऐसा बोलने उसने इसको नाम दिया था. अ कैंडल स्टिक विद नो शैडो एक्सटेंडिंग फ्रॉम द body at either the open or the close is called as Marubozu. Okay, ऊपर का भी कोई कैंडल नहीं है, आप देखिए इसमें कोई विक नहीं है, इसमें कोई शेडो भी नहीं है, लोअर शेडो भी नहीं है, टॉप शेडो भी नहीं है. तो देयर इज नो लॉन्ग शेडो एट एनी साइड. पूरी नॉर्मल कैंडल है. मार्केट दो ही टाइप की कैंडल बन सकती है इसमें. एक ग्रीन कैंडल होगी और एक रेड कैंडल होगी. ग्रीन कैंडल जो होगी वो कैसी दिखेगी? मार्केट खुला और मार्केट ऊपर की तरफ गया और जहां भी जो भी डे का हाई था उसी डे के हाई के आसपास ट्रेड करते हुए नीचे भी आया होगा, ऊपर भी गया होगा, फाइनली क्लोज लेकिन हाई पे ही हुआ. दैट इज कॉल्ड एज मारुबोजो. उसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा ब्लैक कैंडल, ब्लैक मारुबोजो, विच विल बी मार्केट खुला और नीचे गया और लो पर ही क्लोज हो गया. जो भी उस दिन का लो था उसी रेट पर मार्केट क्लोज भी हो गया. दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक मारुबोजो. ठीक है. इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मारुबोजो जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो दे शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. अगर ये मार्केट गिरते हुए में आएगा तो आपको रिवर्सल शो करेगा. अगर ग्रीन मारुबोजो आता है गिरते हुए मार्केट में तो इट शोज कि रिवर्सल के पूरे चांसेस हैं. एट द सेम टाइम बढ़ते हुए मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में अगर ये मारुबोजो अचानक से आ जाए तो आपको ये बिल्कुल शो कर लेना चाहिए कि बाइंग बहुत आ रही है स्टॉक में. इस स्टॉक को आपको वॉच करना चाहिए फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज मारुबोजो. दो और पैटर्न्स हम कंप्लीट करेंगे आज. दो और टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं. मॉर्निंग डोजी स्टार एंड मॉर्निंग स्टार. हमने पहले इवनिंग डोजी स्टार एंड इवनिंग स्टार डिस्कस किया था इन वन ऑफ आवर प्रीवियस सेशंस. आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग डोजी स्टार एंड मॉर्निंग स्टार. मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है? इट इज अ 3-day बुलिश रिवर्सल पैटर्न that is very similar to morning star. The first day is a downtrend with a long black body. The next day opens lower with a doji और लो खुलना है. ठीक है. ये ब्लैक बॉडी के बाद देखिए अगली जो कैंडल है ये लो खुली है उस कैंडल से भी नीचे. ठीक है. विद अ डोजी दैट इज अ स्मॉल ट्रेडिंग रेंज. बहुत स्मॉल ट्रेडिंग रेंज में नेक्स्ट डे का ट्रेडिंग होना चाहिए. एंड द लास्ट डे, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, the close is above the midpoint of the first day. So it will be a bullish reversal pattern. Bullish reversal pattern मतलब गिरते हुए मार्केट में ये आ रहा है, इसका मतलब अभी मार्केट ऊपर जा सकता है. This is a bullish reversal pattern. मॉर्निंग स्टार को डिस्कस करते हैं. एग्जैक्ट सेम चीज है, बस फर्क ये है कि डोजी की जगह स्मॉल बॉडी कैंडल आ जाएगी. डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. A 3-day bullish reversal pattern consisting of 3 candlesticks, a long bodied black candle extending the current downtrend, a short middle candle that gapped down the open, and long bodied white candle that gapped up on the open and closed above the midpoint of the body of the first day. इन दोनों में देखिए सिमिलैरिटी क्या है. एग्जैक्ट सेम सिमिलैरिटी है कि ये बहुत बड़ी ब्लैक कैंडल थी, ब्लैक कैंडल के बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई और एक डोजी बना और फिर उसके बाद एक वापस से गैप अप ओपनिंग हुई और उस गैप अप ओपनिंग के बाद जो नई कैंडल क्लोज हुई वो ब्लैक कैंडल की मिड पॉइंट से ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो उसे माना जाएगा मॉर्निंग डोजी स्टार. और वो ही सेम एग्जैक्ट सेम पैटर्न में अगर डोजी की जगह एक शॉर्ट कैंडल हो
तो उसको कह दिया जाएगा मॉर्निंग स्टार। डोजी वर्ड आउट हो जाएगा क्योंकि वो डोजी नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग। डोजी के केस में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर ऑलमोस्ट इक्वल और दे आर वेरी नियर, देन इट इज कॉल्ड एज डोजी, अदरवाइज उसको शॉर्ट कैंडल कहा जाएगा। ठीक है, सो these are the topics which I wanted to discuss today. 6 कैंडल हमने डिस्कस कर लिए हैं आज। अब हम आते हैं इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टॉक पे, एज वेल एज मैं आज का सेशन थोड़ा सा ओपन रखना चाहूंगा। अभी तक हमने बहुत सारी कैंडल्स पढ़ी हैं, बहुत सारे पैटर्न्स पढ़े हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों की कुछ अगर क्वेश्चंस हों जो आप किसी स्टॉक को एनालाइज करते हुए पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। So now moving to a open session first of all. So if you want to ask any questions, you can please ask your questions now. No questions? Anybody has any questions for me? Sorry, Vaibhav ji, I have joined your session after missed so many sessions in between. So now this is kind of follow-up session today for me. So I won't be having any questions as of No issues. No issues. No issues, Vivek ji. I understand it. just catching up. No issues. I understand. But आज के सेशन में कुछ आपको समझना हो वापस तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है? Done. Thank you. चलिए, anybody else? Any question? कोई चार्ट्स जो आपने एनालाइज किए हों उसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो आपको? अब ये देखिए, ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बट आई विल ट्राई टू शो यू दैट दिस इज अ मारुबोजू। दिस इज सिमिलर टू अ मारुबोजू। देखिए इसका बस छोटा सा डिफरेंस रह गया है हाई और क्लोज में। हाई देखिए इसका 481.90 था और क्लोजिंग था 480 रुपीज 10 पैसा। 480 रुपए का शेयर है सन फार्मा और उसमें 90 डेढ़ रुपए का डिफरेंस रह गया हाई और क्लोज के बीच में, अदरवाइज ये मारुबोजू हो जाता। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हाउ अ मारुबोजू विल लुक लाइक। तो आप देखिए इस कैंडल के बाद मार्केट ने, ये गिर रहा था, स्टॉक गिरना चालू हुआ था 10-12 जून के आसपास, और उसके बाद ये मारुबोजू आया एंड देन उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा गिरा, लेकिन उस मारुबोजू के लो को नहीं क्रॉस कर पाया। ठीक है, और फिर वहां से बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, और आज की डेट में 537 रुपए शेयर चल रहा है। जिस दिन वो मारुबोजू आया था उस दिन लो था 455 का और हाई था 481 का। ये 12 जून की बात है, वेरी रिसेंट। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल हियर, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू अ ब्लैक मारुबोजू। ये देखिएगा, इसमें टॉप की विक नहीं है, जहां खुला मार्केट वहीं से गिरना चालू हो गया ये। ठीक है, इसका लो था 481.60 का, लेकिन क्लोज हुआ 483.60 पे, थोड़ा सा बढ़ के क्लोज हुआ, 2 रुपया बढ़ के, 2.5 रुपया बढ़ के। तो लुकिंग लाइक अ मारुबोजू बट नॉट 100% मारुबोजू। जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। कुछ और चार्ट्स देखते हैं। आप में से किसी के पास कोई इन्वेस्टमेंट हो जिसके कुछ चार्ट्स देखना चाहते हो आप, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर किसी के कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो। इफ यू डोंट वांट टू आस्क over the audio, then you can type me and send it to me across chat. I will try to see if I can answer them. So here, this is Mehak here. Just wanted to understand, like you mentioned कि यहाँ पे ये गिरता हुआ मारुबोजू है, and accordingly market गिरना चाहिए
because it's a very strong trend. जी But and generally अगर कोई pattern देखते हैं तो we would look it for a couple of days. So how do we identify? Because it looks like ये थोड़े दिन गिरा and then it again started increasing. So how do we identify whether it is बिल्कुल सही। false? तो महक जी देखिए, हर कैंडल का रेलेवेंस रहता है फॉर नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज से लेकर नेक्स्ट 4 डेज तक, ठीक है। ये मारुबोजू जब आया तब गिरना चालू हो गया था, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये डोजी बन गया, राइट, स्पिनिंग बॉटम, ये डोजी बनना चालू हो गया और उसके बाद गैप अप ओपनिंग है यहाँ पे अगले दिन। तो इस कैंडल के डाउननेस, इस कैंडल की वीकनेस को इसने रिवर्सल के, डोजी शोज रिवर्सल, राइट, गिरते हुए मार्केट में आया, डोजी आ गया तो हमारे को रिवर्सल का इंडिकेशन दे दिया उसने। यहाँ पे हमें बचना चालू कर देना चाहिए, हमें सोचना चालू कर देना चाहिए कि अगर हमने सेल किया है इस कैंडल को सोचकर कि सेल किया था ट्रांजेक्शन, तो हमें फिर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना चालू कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे डोजी आ गया है। अगर कंटिन्यूइंग ट्रेंड होगा, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू होना होगा, तो ये इसके आगे आपको और वीकनेस दिखनी चाहिए थी जो नहीं दिख पाई। Got it? That is how the analysis should be done. बढ़ते हुए मार्केट में भी आपको शॉर्ट कैंडल्स दिखेंगी, गिरते हुए मार्केट में भी शॉर्ट कैंडल्स दिखेंगी, लेकिन जब शॉर्ट कैंडल डोजी का पार्ट फॉर्म कर लें या स्पिनिंग टॉप्स और स्पिनिंग बॉटम्स के रूप में दिखना चालू हो जाएं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ का मैं चार्ट, इसी चार्ट को मैं जूम करके थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, जूम इन करके, ये देखिए ये मार्केट गिरा होगा मार्च और अप्रैल में, जब अपने पास ये कोविड की सिचुएशन आई थी तो गिरा था, ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा था, इसने लो मारा और फिर उसके बाद ये बढ़ना चालू हुआ। जब बढ़ना चालू हुआ तो इसने अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे ये क्या आया, डोजी आ गई, राइट, स्पिनिंग टॉप, एंड देन इसके बाद अब देखिए मार्केट बढ़ रहा था, मार्केट वाज अ बाइंग ट्रेंड, इट वाज अ ट्रेंड व्हिच वाज शोइंग दैट मार्केट इज राइजिंग, बट क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप आ गए और कंटिन्यूस आए एक के बाद एक दो, एक कैंडल को छोड़ के फिर तीसरा एक और, तो दिस शोज कि अब मार्केट अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। व्हाटएवर दिस स्टॉक इज राइजिंग अबाउट, इट कैन लूज इट्स स्टीम, हो सकता है कि ये कंटिन्यूस राइज नहीं करे। यहाँ पे मैं इस कैंडल को देखूंगा तो ये देखूंगा, आप सोचिए कि उस दिन के बाद की कैंडल मुझे नहीं दिख रही है, तो ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे फर्स्ट डोजी, दिस इज सेकेंड डोजी, उसके बाद 4 दिन तक नॉर्मल कैंडल्स आई, बढ़ती हुई कैंडल्स आई, फिर से डोजी, फिर से डोजी, फिर एक कैंडल, फिर एक डोजी। इन 7 days to 8 days, out of them 3 or 4 dojis have come. This is a clear indication कि market is going to probably reverse. There is a strong chance of reversal in this particular case, and fortunately इस केस में आपको वो रिवर्सल देखने को मिला। उसके पीछे कारण दूसरे भी हैं, ये देखिए जब बढ़ रहा था तो बढ़ते हुए मार्केट में इसमें वॉल्यूम्स कम होना चालू हो गए थे, अगर और बढ़ना था इसको तो नीचे वॉल्यूम बढ़ता, if there was a buying which was going to happen, यहाँ वॉल्यूम्स घटना नहीं चाहिए थे, बढ़ते हुए मार्केट में ये वॉल्यूम घट रहे थे। that also showed another method of analyzing कि ये मार्केट बढ़ तो रहा है लेकिन this particular stock is showing signs of weakness। एक अच्छा ट्रेडर देखिए, आपने व्हाट्सएप में मैसेजेस देखे होंगे, कुछ और भी मेंबर्स हैं व्हाट्सएप में जिन लोगों ने बोला है कि फंडामेंटल तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस इज मोर फॉर ट्रेडर्स, मोर फॉर समबडी हु कैन वॉच द मार्केट और मे बी हु कैन ट्रैक द मार्केट करेक्टली। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस इज आल्सो फॉर एन इन्वेस्टर, टेक्निकल एनालिसिस इज आल्सो फॉर एन इन्वेस्टर हु हैज इन्वेस्टेड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, बट he can be a smart investor by exiting and entering the same stock which he has taken from a long term perspective but still making money out of it। मैंने अगर सन फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए लिया था 315 रुपए पर और मैं उसको खरीदता रहा, यहाँ पे खरीदने के बाद मैंने उसको होल्ड किया, एक महीने के अंदर अंदर मुझे ये 480-90 का भाव दिख गया, 490 रुपीज का रेट हो गया था 27 अप्रैल को आफ्टर 30th of March। मैं क्या एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकता है तो प्रोबेबली यू कैन सेल सम ऑफ द शेयर्स एंड 490 पे सेल करके
मार्केट ने फाइनली 434 का लो मारा है वापस से। दैट शोज कि 60 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन कर सकते थे जस्ट बाय बाइंग एंड सेलिंग दैट सेम स्टॉक्स व्हिच यू वर ऑलरेडी होल्डिंग। दैट्स व्हाट इज माय एडवाइस कि टेक्निकल एनालिसिस को वॉच करके रखते हैं तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट सही मिल जाते हैं। मुझे अगला क्वेश्चन आया है चैट विंडो पे शायद, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम लॉन्ग लेग्ड डोजी, व्हाट टू इन्फर फ्रॉम इट। ओके, सो लॉन्ग लेग्ड डोजी का इन्फरेंस क्या है, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है तो मैं उसका आंसर देता हूं आपको। अगेन फिर से रिपीट करते हैं जो डिस्कशन आज हमने किया। और देखिए यहाँ पे फॉर्चुनेटली एक मुझे दिख रहा है लॉन्ग लेग डोजी। ये सारी डोजीज जो हैं सन फार्मा में, ये सारी लॉन्ग लेग डोजीज हैं, ठीक है। दिस शोज कि इनडिसीजन है मार्केट में। इट इज शोइंग दैट देयर इज एन इनडिसीजन इन द मार्केट। मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे आ पा रहा है, जिस रेट पर ओपन हुआ उसी रेट के आसपास क्लोज हो गया। दिस इज क्लियरली शोइंग एन इनडिसीजन इन द मार्केट। हाँ देखिए, ये डोजी कब से आना चालू हुआ, ये 454 रुपए का भाव है। उसके बाद बढ़ा या नहीं बढ़ा, यस बढ़ा, 30-40 रुपए शेयर बढ़ा है, बट कंटिन्यूस डोजीज आए हैं इसमें, 3-4 डोजीज आए हैं। सो दैट इज शोइंग कि ये ट्रेंड जो है वीक होने के चांसेस दिख रहे हैं। दैट्स हाउ यू शुड रीड इट। I hope I answered your question, whosoever asked this. If there is any follow-up question, I can answer. Else, कोई और question हो आपके पास तो we can discuss it. Quickly change the chart. Vaibhav ji, there was some news that Reliance is going to buy Future Retail. So I just want to know what's your perspective on the, future share price stocks for this Future Retail. हाँ, रिलायंस अगर उसे खरीदता है सर तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिलायंस इज अ वेरी बिग नेगोशिएटर। कभी भी किसी भी चीज अगर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट इन पास्ट भी, रिलायंस कोई भी चीज महंगा नहीं खरीदता है। दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑन नेगोशिएशन एंड that is the key way in which Reliance has been working for so many years. And they are considered to be very good bargainers. So for Future Retail, I don't see कि they will get too much of good value. अगर वही डील वॉलमार्ट के साथ होती तो शायद ज्यादा पी पे होगी, वही डील किसी और के साथ होती तो शायद ज्यादा बेटर रेट पे होती। लेकिन रिलायंस विल स्क्वीज आउट एज मच एज पॉसिबल। पी मल्टीपल्स लो होंगे जिस मल्टीपल पे रिलायंस उसको खरीदेगा। बट इस बात का हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ है। फ्यूचर रिटेल जो शेयर है वो ऑलरेडी बहुत इन पास्ट में बहुत उसका डाउनफॉल आ चुका था। कंटिन्यूस लोअर सर्किट लगे थे इस शेयर्स में। देखिए, मैंने आपसे बात करने से पहले ही इसको खोलने से पहले आपको ये चीज बोल दिया था। ये देखिए, कंटिन्यूस लोअर सर्किट लगे थे इस शेयर्स में। किसी जमाने में आज से 6 महीने पहले ये 285 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज भी और कंटिन्यूस लोअर सर्किट लगने के बाद ये शेयर का प्राइस हो गया था ओनली 63 रुपीज। अभी भी ये न्यूज पिछले 1 महीने से ऑलरेडी मार्केट में चल रही है कि रिलायंस इज गोइंग टू बाय इट, रिलायंस इज गोइंग टू बाय इट। उसके बावजूद दिस हैज नॉट गॉन मच अप। 108 करंट रेट चल रहा है इसका। I don't see a major upside for future retail except हाँ, अगर आप 20% रिटर्न की बात कर रहे हैं तो yes, that's possibility. 20 से 25% रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। अगर आप उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि मिल जाएगा तो ठीक है, तो yes, you should invest it. Otherwise, लॉन्ग टर्म के हिसाब से Reliance itself is becoming such a bigger fish कि आगे sooner or later, even if it acquires future retail, it will again first merge it and then demerge it again. आपने देखा होगा, याद होगा आपको, रिलायंस पेट्रोलियम अलग से एक शेयर हुआ करता था। जब रिलायंस को अपनी नई रिफाइनरी जामनगर में सेटअप करनी थी तो उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम का इशू लाए थे, सेपरेट कंपनी के रूप में उसको लिस्ट किया था एंड फाइनली उसको वापस से रिवर्स बायबैक करके डिलिस्ट कर दिया। yes. तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल एक सेपरेट कंपनी के रूप में कंटिन्यू रहेगा, बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा।
बाकी देखते हैं सर आगे क्या होता है, मुझे भी नहीं मालूम है इतना, इनसाइडर न्यूज मेरे पास भी नहीं है। और ऑफ कोर्स ये जरूर मुझे लगता है कि Reliance itself is going to be a very big company in times to come. Retail is one of the sectors which is a opening sector for India, and it is going to soon buy very very big fishes. जैसे बिग बास्केट हो गया, मिल्क बास्केट हो गया, जो हम लोग यूज करते हैं, क्रॉफर्स हो गया. These are all big names, but because Reliance के साथ कुछ और भी बड़े names जुड़ चुके हैं, तो Reliance शायद बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से रिटेल मार्केट में एंटर कर पाएगा. Right. Thank you for your views. Thanks for asking that question. Any question? Anybody else has got any question? No questions? Okay. So if I don't have any further questions, I'll just stop sharing and probably stop recording as well.